Good evening, students. Welcome to my channel, Dr. Prerna Pharma. I am Dr. Prerna Upadhyay and I am working as a profession head in Department of Pharmacology in a medical college in Jaipur, Rajasthan. A little bit about myself. I have done my MBBS from Grand Medical College, Bombay. My All India rank was 294. In All India PG, my rank was 740 and I took MD Pharmacology in Lady Hardinge Medical College, New Delhi. Many clinical subjects were available at that time, and it was not so difficult. I had got a good rank in MP PG also. I had got third rank, but because of some family reasons, some personal reasons, I was pregnant and I was just about to deliver a baby, and I didn't want my family to stay in separate places, and I didn't want my son to have that experience of missing their parents in the early years of life. So I opted for what was available in New Delhi at that time, as my husband was doing DM in cardiology from AIIMS. So then I took MD in pharmacology, and it is a good decision, and I have enjoyed my tenure, my role as a teacher. This is something I really like because just like a clinician says that they treat patients and they are doctors, they are the ones who treat patients. So I take pride in saying that we make doctors. We get students as small unshaped mounds of clay and we shape them, and we shape them in such a way so that they become good and humane doctors. So the main purpose or the main passion of making this channel is to spread the knowledge of pharmacology to all the medical students in India, so that I understand pharmacology is a very tough subject for you all. It's a very volatile subject, and definitely it requires lot of practice, lot of revision again and again, till you remember the names of drugs, till you remember their mechanisms of actions, their drug interactions, contraindications, uses, side effects, and so many more. So this is a difficult subject, and I really like this subject because I believe that once you understand the concepts of the pharmacology, you will start loving the magic of pharmacology. As a doctor, हमारा क्या रोल होता है? सबसे पहला, पेशेंट हमारे पास आता है तो हम हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं और एक डायग्नोसिस बनाते हैं. अब डायग्नोसिस बनाने के बाद आपका क्या रोल है? एज अ डॉक्टर आपका तो यही रोल है ना कि आप उसको सही दवाई लिखें. तो ये दवाई लिखने की जो नॉलेज है, ये आपको फार्माकोलॉजी से ही मिलेगी. आपकी जितनी अच्छी नॉलेज होगी फार्माकोलॉजी की, आपकी उतनी ही अच्छी प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग होगी, आप उतने ही सक्सेसफुल डॉक्टर कहलाएंगे. आपकी प्रैक्टिस सक्सेसफुल होगी, आपके पेशेंट्स आपसे हैप्पी रहेंगे बिकॉज यू हैव गिवन देम द राइट ड्रग्स. सो robust knowledge of pharmacology is very very important, not just for cracking NEET exams, not just for cracking USMLE, FMGE and other exams, but also as you becoming a successful doctor in future. So take this channel seriously, take this subject seriously, and I'm here to help you out. I'm here to make the concepts easier. I'm here to make the subject understandable. So subscribe to my channel, watch all the videos very diligently, very properly. You can watch them at 1.5x speed for faster results, and definitely share it to all your friends and colleagues who need this. So now coming to the topic of NEET PG. तो NEET PG का exam जो पहले it was scheduled in June, now it is postponed to August. So you have got some more time to study. अगर आज से हम गिने तो you have got around 3 months to study. 3 months is not a less time. अगर किसी ने पढ़ाई नहीं शुरू करी है तो वो ये सोचकर अभी हताश ना हो कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं है तो मैं नहीं कर सकता हूँ. नो, 3 months is a good time to do your studies. When I cracked my NEET PG exam, the exam was in January and I started my preparation from say July or August. So and उसमें भी फिर I had taken some crash courses also which were available at that time. So but the time is not a कॉन्स्टेंट टाइम नहीं है. बस आपको लग जाना है, आपको शुरू हो जाना है. आप शुरू कर लीजिए पढ़ाई. और जिन लोगों की पढ़ाई ऑलरेडी चल रही थी, जिन्होंने खूब सारी पढ़ाई कर रखी है, उनके लिए ये बेस्ट टाइम है, ये जो एक्स्ट्रा टाइम है उनके लिए कि वो MCQs करें. मैक्सिमम से मैक्सिमम MCQs करिए. जितने ज़्यादा आप MCQs सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छी, और उतना ही अच्छा आपका फिर परफॉर्मेंस रहेगा. तो नीट पीजी में सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहती हूँ फार्माकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है. फार्माकोलॉजी का ये इंपॉर्टेंस है कि इस एग्जाम में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस फार्माकोलॉजी बेस्ड होते हैं.
कोर फार्माकोलॉजी से आते हैं, और जो क्लिनिकल क्वेश्चंस होते हैं जैसे मेडिसिन या दूसरी ब्रांचेस के क्वेश्चंस है, उसमें भी कहीं ना कहीं फार्माकोलॉजी बेस होता है। तो आपकी फार्माकोलॉजी का बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आप फार्माकोलॉजी के अलावा बाकी जो क्लिनिकल क्वेश्चंस है उनको भी आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, उनको भी आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। तो इसलिए फार्माकोलॉजी की जो पढ़ाई है वो आपके नीट पीजी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको गारंटी देती हूँ दैट इफ़ योर नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी इज़ गुड देन हैरिसन इज़ अ केक वॉक फॉर यू। अगर आपने फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, अगर आपकी फार्माकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तो फिर हैरिसन आपके लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि हैरिसन मोर देन 60% इज थेरेपेटिक्स। तो थेरेपी जहाँ पे आती है तो वहाँ पे फार्माकोलॉजी आई जाती है, ड्रग्स आती हैं, आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, उनके यूजेस, सब कुछ चीज़ें अच्छे से आएंगी तो आप डिसीज़ के बारे में, डिसीज़ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। तो नीट पीजी में देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। देखो, डोंट गो फॉर एमसीक्यूज डायरेक्टली, डोंट गो फॉर पीवाईक्यूज डायरेक्टली, डोंट गो फॉर बीटीआरस डायरेक्टली, गो फॉर द बुक रीडिंग और द वीडियोस और द नोट्स, वट एवर इज योर रिसोर्स, वट एवर इज योर लर्निंग रिसोर्स। आप बुक से पढ़ना चाहते हो, बुक से पढ़ो। आप वीडियोस देख के पढ़ना चाहते हो, वीडियोस देख के पढ़ो। आप नोट्स लेके पढ़ना चाहते हो, आप नोट्स लेके पढ़ो। आप तीनों को मिक्स भी कर सकते हो। आपको कुछ चीज़ें वहाँ से पढ़ो नोट से, कुछ चीज़ें वीडियोस से, कुछ चीज़ें बुक से, तो मिक्स करके भी पढ़ सकते हो तो सबसे पहले जो थोड़ा सा टाइम आप सबसे पहले अपनी जो एक बेसलाइन पूरा कोर्स है उसको ख़त्म करने के लिए लीजिए। आप अपना कोर्स अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए पहले एक बार, ठीक है। इट शुड नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम। वो कोर्स आप अच्छी तरीके से रिवाइज करने के बाद देन यू टेक द PYQs, द पास्ट ईयर क्वेश्चंस। उन पास्ट ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर से करो, क्योंकि इसमें एक रूल होता है। देखो, 80% रूल होता है, 80/20% रूल, मतलब 80% ऑफ द क्वेश्चंस यूजुअली कम फ्रॉम 20% ऑफ द टॉपिक्स। तो टॉपिक्स कोई नए नहीं होते हैं, वही टॉपिक्स होते हैं, वही 19-20 सब्जेक्ट्स हैं, उसी में से वो ज़्यादा जिन जिन टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक्स को ज़्यादा रिवाइज करो, ठीक है। जिन टॉपिक्स में क्वेश्चन नहीं आते उनमें आप अननेसेसरी अपना टाइम मत वेस्ट करो। तो ये स्ट्रैटेजिक पढ़ाई कहलाती है। पीवाईक्यूज क्यों करें? क्योंकि मिक्स आता है। पीवाईक्यूज मतलब लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी होते हैं, कई बार उन्हीं क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यूज कर रखे हैं तो देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग गुड मार्क्स। थर्ड चीज होती है आपके बीटीआर एंड डीवीटी। ये जो रिवीजन सीरीज हैं, जो रिवीजन कोर्सेज बनाए गए हैं, ये बहुत अच्छे हैं। एक बार आपका कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा कोर्स आपका क्लियर है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपने पीवाईक्यूज भी अटेम्प्ट करे हैं, तो बीटीआर और डीवीटी जरूर करिए। कोई भी चीज़ खराब नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मैं तो ये नहीं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगी, ऐसे नहीं। सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, फास्ट करना है अपने को, ठीक है। सो बीटीआर्स भी करो, डीवीटीज भी करो, जहाँ से आपको मिल जाए। देन उसके बाद आपका जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल्स में दिए होंगे, या आपके जो किसी क्रैश कोर्स को ज्वाइन किया है या किसी पर्टिकुलर कोचिंग को ज्वाइन करा है वहाँ से मिल जाते हैं आपको। जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है उसमें मिल जाते हैं। बहुत सारी बुक्स भी आती हैं हमारे जिनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बने होते हैं, तो उनको भी आप रेफर करो एंड डू एज मेनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एज यू कैन। In my channel also I'm going to make a series of multiple choice questions. I'm going to take 10 MCQs, commonly asked MCQs and difficult MCQs, और उसको हम solve करेंगे, उनको हम break down करेंगे and we'll understand what is the concept behind that question. कई बार questions trick questions आते हैं, दिखता कुछ और है उसको पढ़ के, लेकिन होता कुछ और है। तो ये जब तक आप बहुत अच्छे से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं करोगे ना, तब तक आप इस ट्रिक क्वेश्चन को ब्रेक नहीं कर पाओगे, आप क्वेश्चन के पीछे की साइकोलॉजी को समझ नहीं पाओगे। सो उसके लिए यू हैव टू डू देम लॉट ऑफ, यू हैव टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज लॉट ऑफ टाइम्स। जब खाली बैठे हो एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो, लेकिन अपना जो बेस है ना उसको आप अच्छा बनाओ। जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अभी अपना जो कॉम्प्रिहेंसिव बेस है, सब्जेक्ट्स बेस है, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अच्छी तरीके से क्लियर करें। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आप अभी एमबीबीएस में हो, आपको अभी एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स पास करने हैं, तो पास करने हैं उसके साथ साथ तो वहीं पे आप अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते चलो, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलो, ताकि जब आप आगे चल के इनको रिवाइज करोगे तो आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। इंटर्नशिप में आपको जॉब भी करना है, इंटर्नशिप भी करनी है, इंटर्नशिप के साथ साथ आपको
अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करनी है, तो अपने टाइम शेड्यूल को ऐसा करो ताकि आप अपनी पढ़ाई भी ठीक से कर सको और अपने आपकी जो ड्यूटी आवर्स हैं उनको भी आप कर सको, प्रॉपरली ड्यूटी कर सको। कई कई जगहों पे होता है कि ड्यूटी आवर्स में भी पढ़ने को टाइम मिल जाता है, कहीं पे नहीं मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कभी हो सकता है कि एंड में आपकी बहुत हैवी पोस्टिंग आ जाए और किसी की हो सकता है एंड में बहुत लाइट पोस्टिंग आ जाए। सो दीज आर वेरिएबल सिचुएशंस, लेकिन आपकी तैयारी आपको रोबस्ट रखनी है तो उसके लिए आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। एंड ऑल सेड एंड डन, दिस इज एन एग्जाम। डोंट टेक थिंग्स सीरियसली टू योर माइंड एंड हार्ट। आप अपने आप को बिल्कुल इसके पीछे ऐसे साइकोलॉजिकली दबाव में मत आओ कि ये एग्ज़ाम मैंने क्रैक नहीं करा तो मेरा क्या होगा। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने को, फिर से हम पढ़ाई करेंगे, फिर से अगले साल एग्ज़ाम देंगे, तब तक हम दूसरी जगहों पे कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। देयर आर अदर वेंचर्स ऑल्सो विच यू कैन डू। तो इसलिए कभी भी एग्ज़ाम में हताश होने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में निराश होने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड थिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास यू शुड हैव अ सपोर्ट सिस्टम, अ मेंटल सपोर्ट सिस्टम, साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम या इमोशनल सपोर्ट सिस्टम। आपके फ्रेंड्स हो, कोई एक दो फ्रेंड्स ऐसे हों जिनसे आप अपने दिल की बात कर सकें, या आपके मेंटोर्स हों, आपके कोई टीचर हों जिनसे आप जाके बात कर सकते हो, आपके पेरेंट्स हैं जिनको आप बोल सकते हो। तो कभी भी ज़िंदगी में अपने आप को अकेला मत समझो। आपके पास लोग हैं, आपके पास लोग हैं, हमेशा तैयार हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको ऊपर उठाने के लिए। कभी भी ये मत सोचो कि मैं इससे मदद मांगूँ नहीं मांगूँ, पता नहीं क्या सोचेंगे, जाऊँ नहीं जाऊँ, मैडम से बात करूँ नहीं करूँ। आई एम देयर फॉर माई स्टूडेंट्स ऑलवेज। एंड वाई आई एम देयर, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू देयर पोजीशन। मैं उस दौर से गुजरी हूँ जब मैं भी एक स्टूडेंट थी, मैं भी एक इंटर्न थी, मैं भी एक पीजी प्रिपरेशन करने के लिए बैठी हुई थी। तो मुझे पता है वो टाइम क्या होता है, मुझे पता है कि क्या गुजरती है दिमाग में। तो प्लीज़ डोंट लूज हार्ट, डोंट लूज होप। Everyone is there for you. If no one is there, please talk to me. I'll always respond to you. तो इसलिए अच्छे से तैयारी करो, अपने सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ो एंड अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। देखो, एज अ डॉक्टर ऑल्सो तुम जब मार्केट में जाओगे, डॉक्टरी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, तो आप डिसीज़ को जल्दी से पकड़ोगे और उसकी बीमारी के बारे में आपका ट्रीटमेंट, आपके इन्वेस्टिगेशंस, आपके डायग्नोसिस अच्छा बनेगा। तो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर करना है, हमें रटना नहीं है। कुछ चीज़ें हाँ ठीक है रटनी भी पड़ती हैं, रटनी इसलिए पड़ती है क्योंकि वो ऐसे याद नहीं होती है, तो रटनी भी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जब आप उसे प्रैक्टिस करते हो वो चीज़ें भी याद हो जाती हैं। और फिर आगे बहुत एडवांसमेंट्स आते रहते हैं, तो उनको भी हमें याद करना है, उनको भी देखना है। हम एडवांसमेंट्स आएंगे तो हम ऐसा नहीं कि हम अपने तो पुराने ही सिस्टम पे चलेंगे, हम नए सिस्टम को अपनाएंगे नहीं, तो ऐसा नहीं। सो थिंग्स आर ऑलवेज एवर evolving, ever changing, so we have to change accordingly. So in the end, I like to say all the best to all the students, all the aspirants, all the medical students, for good understanding, good reading and good learning of pharmacology, and to all the NEET aspirants, students who are appearing for USMLE और FMG, that अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, पैशन के साथ पढ़ो। मज़ा है इसमें, मैजिक है डॉक्टरी में, इसीलिए तो हम लोग आए हैं इसमें। एंड ये और हम लोग सब साथ में हैं, कभी भी कोई किसी बात की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। So all the best, good luck. Please watch, share, subscribe my channel, and write in comments what are the main topics that you would like to discuss, so I'll take them on a priority basis.